Apportionment of credit and block credit, section 17. In section 17, there are certain subsections. So we have to discuss this section 17, and we will learn what amount of ITC is blocked under section 17. So first, section 17, subsection 1, where the goods or services or both are used by registered person partly for the purpose of any business and partly for other purpose, the amount of credit shall be restricted to so much of the inputs as it is attributable to the purpose of his business. That means what? Here two things are very important. If some part of input is used for business, that is, here it is some part is used for business and some part is for any other purpose. So what is the input tax credit available? So input tax credit is available to that part which is available, which is used for the business purpose. Say for example, Mr. X has purchased raw material of rupees 50,000 and made finished goods out of this 50,000 raw material. Now out of this finished goods, from this finished goods, let us take example, 40,000 is used for business purpose and 10,000 is used for personal purpose. So whatever GST paid on 40,000, ITC is available, but on 10,000, whatever GST will be paid by him, it is blocked, totally blocked. तो 10,000 पे मान लो कि 1,000 हो रहा है तो वो ब्लॉक हो जाएगा, और जो 40,000 पे 10% अगर कर लो 4,000, तो उसने टोटल पे किया है जीएसटी 5,000 और उसको क्रेडिट सिर्फ 4,000 ही का ही मिलेगा. क्यों? क्योंकि उसने जो 10,000 का गुड्स था वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर दिया है. तो इसका मतलब पर्सनल पर्पस या एनी अदर पर्पस के लिए यूज किया है तो उसका क्रेडिट उसको नहीं मिलने वाला. तो यानी यहाँ पे 17 सबसेक्शन 1 में एकदम क्लियर कट बोल दिया है कि जितना आप इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस यूज करोगे उतना ही क्रेडिट मिलेगा, और अगर वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ द बिजनेस नहीं हुआ तो उतना क्रेडिट आपको नहीं मिलने वाला. हमारा जो एग्जांपल लिया था उसको उस केस में मिस्टर बी को 18,000 का क्रेडिट मिला था. नाउ 18,000 का क्रेडिट जो मिला है उसको, तो वो 18,000 का क्रेडिट उसको कितना मिलेगा? जैसे उसने 18,000 मिस्टर ए को जीएसटी पे किया था और कस्टमर के पास से उसको 27,000 मिला, तो गवर्नमेंट की उसकी लायबिलिटी आती थी 27,000. अब 27,000 में से 18,000 माइनस कर दिया, बट उसका पूरा क्यों मिला? क्योंकि उसने पूरा का पूरा बिजनेस में यूज किया था. बट मान लो कि उसमें थोड़ा बहुत भी पोर्शन उसने बिजनेस में यूज नहीं किया होता तो उसको क्रेडिट नहीं मिलता. जैसे मान लो कि उसने 18,000 का क्रेडिट मिल रहा था, बट ऐसा गुड थोड़ा बहुत गुड उसने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया जिसपे जीएसटी होता था 1800, तो अब उसका 1800 का क्रेडिट नहीं मिलेगा. अब उसको 18,000 में से 1800 माइनस हो जाएगा तो 16,200 का ही क्रेडिट मिलेगा. 18,000 का क्रेडिट माइनस हो जाएगा, यानी अब 27,000 में से 16,200 ही माइनस करेगा और रिमेनिंग अमाउंट वो गवर्नमेंट को पे कर देगा, बिकॉज वो कंज्यूमर बन गया. अब उसका तो वो कंज्यूमर बन गया तो उसका उतना क्रेडिट रिस्ट्रिक्ट हो गया. तो समझ में आ रहा है कि पहले उसको 27,000 का क्रेडिट में से 27,000 लायबिलिटी था, उसमें से 18,000 का क्रेडिट मिल रहा था, बट उसने अब ऐसा थोड़ा बहुत गुड्स पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर दिया जो उसका जीएसटी 1800 होता था, तो 18,000 में से 1800 माइनस किया तो अब उसको क्रेडिट मिलेगा 16,200 ओनली. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज section 17 subsection 2. Section 17 subsection 2 says that where the goods or services or both are used by registered person partly for effecting taxable supplies including zero rated supplies under which tax or under the Integrated Goods and Service Tax Act and partly for effecting exempt supplies under the said act, the amount of credit shall be restricted to so much of the input tax as is attributable to the said taxable supply including zero rated supply. First of all, you should understand what is taxable supply, what is zero rated supply, what is exempted supply, what is non taxable supply. Taxable supply
if your outward supply is taxable supply or zero rated supply, so in that case whatever tax paid at the time of input, that is allowed as a credit. Say for example, there are 4 types of goods: type A goods, type B goods, type C goods, and type D goods. On all these, price of these all types of goods is 10,000. So total 40,000 is paid on these all types of goods. Now GST is, let us take 10%. So 4,000 is the GST which is paid at the time of input of a services. Okay. Now from this 40,000, let us take type A good. Type A good tax rate is 10%. Type B goods tax rate is 12%. Type C goods tax rate is 0, and type D good tax rate is dash, or you can say that exempt. Okay. अब हर एक गुड्स का प्राइस था 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 और सब पे टैक्स था 1,000, 1,000, 1,000, 1,000 वो जिसने पे किया था। जब पे किया था तब उस पे टैक्स था, बट जब आउटवर्ड सप्लाई हो रहा है तब उसका टैक्स रेट डिफरेंट बन रहा है। पहले पे 10% है, दूसरे पे 10%, तीसरे पे 0 रेट है, एंड थर्ड पे नील है। यानी जब परचेस कर रहा था तब सब पे टैक्स था, बट जब सेल कर रहा हूं तो टैक्स का रेट अलग है। अब जब आपका आउटवर्ड सप्लाई, समझना कि जब आपका आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई या 0 रेटेड सप्लाई है, तब आपने जो भी प्रीवियस स्टेज में टैक्स पे किया था उसका क्रेडिट मिल जाएगा इफ इट इज यूज्ड फॉर द बिजनेस। बट इफ योर आउटवर्ड सप्लाई is exempt supply or nil rated supply or non taxable supply, then your input tax credit is blocked. तो in that case आपको input tax credit मिलने वाला नहीं है। तो कहां पे input tax मिलेगा और कहां पे input tax नहीं मिलेगा वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में बोला है। Once again I am repeating the same thing. If your outward supply is taxable supply including 0 rated supply, if your taxable supply is taxable supply or 0 rated supply, then ITC is available. But if your outward supply is exempt supply or nil rated supply, then you will not get any amount of ITC on it. Now section 17 subsection 3, the value of exempt supply under subsection 2 shall be such as may be prescribed and shall include supplies on which the recipient is liable to pay tax on reverse charge basis. Transaction in securities, sale of land subject to clause B of paragraph 5 of schedule 2, sale of building. यानी 17(3) में there are certain specified transactions. If you are doing such kind of transaction, then ITC is not allowed. Say for example, यहाँ पे दिया है tax on reverse charge basis, which is the recipient is liable to pay tax. Reverse charge basis means when recipient is liable to pay tax, then supplier will not eligible to take input tax credit, क्योंकि supplier tax पे करता ही नहीं है। वहां पे कौन पे करेगा? रिवर्स चार्ज में रेसिपिएंट पे करेगा, तो सप्लायर को इसका क्रेडिट नहीं मिलने वाला। समझना इसको, कोई डाउट है तो बस बाद में एट द एंड ऑफ द लेक्चर पूछना। ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज, अगर कोई सिक्योरिटीज में डीलिंग कर रहा है तो सिक्योरिटीज तो मैंने पहले भी बताया था कि गुड्स की डेफिनेशन में से भी एक्सक्लूड किया था। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड थिंग्स अटैच्ड ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड व्हिच आर अग्रीड टू बी सेवर्ड और अंडर द कॉन्ट्रैक्ट or before supply. And services means all things other than goods, money and securities. तो दोनों की डेफिनेशन में सिक्योरिटीज को एक्सक्लूड किया था। तो अगर आप ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी करते हो तो उस पे जो भी जीएसटी, नॉर्मली सिक्योरिटी पे जीएसटी लगता ही नहीं है। देखो ये सारी चीज ऐसी है, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, ये सारे पे जीएसटी लगता ही नहीं है। तो व्हाई वी हैव इंक्लूडेड इनटू ब्लॉक क्रेडिट? जब लगता ही नहीं है तो पे करने का होगा नहीं तो हमने ब्लॉक क्रेडिट में क्यों डाला है? क्योंकि देखो एक एग्जांपल लैंड का देता हूं। लैंड जब सेल करते हो तो उस पे आपको जीएसटी कभी भी लगेगा नहीं, बिकॉज इट इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी।
बट ये लैंड सेल करने के लिए आपने ब्रोकर को अपॉइंट किया और ब्रोकर को आपने ब्रोकरेज पे किया एंड ब्रोकर हैज चार्ज जीएसटी ऑन इट. Broker has supplied the services and you are the recipient of the services of broker services. So आपने उसको पेमेंट किया और वो पेमेंट पे जो सप्लायर ऑफ द सर्विसेज था यानी ब्रोकर था उसने जीएसटी लगाएगा क्योंकि सेल ऑफ लैंड पे जीएसटी नहीं लगता, ब्रोकरेज पे थोड़ी जीएसटी नहीं लगता. तो अगर वो ब्रोकरेज पे उसने जीएसटी लगाया है, समझना ब्रोकरेज पे जो भी जीएसटी लगाया है उसका आपको क्रेडिट मिलेगा तो नहीं, वहां पे नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सेल ऑफ लैंड इज नॉट कवर्ड अंडर definition of goods, so then it is then whatever GST paid on sale of land in the form of brokerage or in any other form, that amount is also blocked under section 17 subsection 3. यानी सेल ऑफ लैंड पे आपने ब्रोकरेज पे किया 1 लाख और उस पे जीएसटी पे किया 10,000, तो क्या ये 10,000 का मुझे जीएसटी में फायदा मिलेगा? क्या उसका मैं क्रेडिट ले सकूंगा बाद में? तो आंसर इज क्लियर कट नो, इट इज नॉट अवेलेबल टू यू. Now next point is section 17 subsection 4. A banking company or a financial institution including a non-banking financial company engaged in supplying services by way of accepting deposit, extending loans or advances shall have the option to either comply with the provision of subsection 2 or avail of every month an amount equal to 50% of the eligible input tax credit on inputs, capital goods and input services in that month, and the rest shall lapse, provided that the option once exercised shall not be withdrawn during the remaining part of the financial year. Provided further that the restriction of 50% shall not apply to the tax paid on supply made by one registered person to another registered person having the same permanent account number. यानी 17 सबसेक्शन 4 में क्या बोला है कि जो भी बैंक है या एनबीएफसी है, बैंक का नॉर्मली काम होता है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, एक्सटेंड लोन्स एंड एडवांसेस. उनके लिए दो ऑप्शन रखा है. आइदर यू कैन कंप्लाई विद सेक्शन सबसेक्शन 2, दैट इज सेक्शन 17 सबसेक्शन 2. यानी you can bifurcate what is your taxable supply, zero rated supply, exempt supply, and you can take ITC according to it. Or you have another option, you can every month you can take 50% of your input as a ITC. 50% जो है आपका ITC जितना भी हो रहा है उसका 50% क्रेडिट ले लीजिए और 50% जाने दीजिए, shall be lapsed. ओके, क्योंकि मेन काम बैंक का क्या है कि उसको तो ये सब सर्विसेज प्रोवाइडेड करने हैं, ये सब उसको प्रोवाइड करना है, ये सब में उसको नहीं पढ़ना है कि व्हाट इज टैक्सेबल, व्हाट इज एग्जाम्प्टेड. तो इसलिए उनको ये ऑप्शन दिया है. बट वंस ऑप्शन हैज बीन एक्सरसाइज बाय देम, एक बार ऑप्शन उन लोगों ने एक्सरसाइज कर लिया तो पूरे फाइनेंशियल ईयर वो ऑप्शन कंटिन्यू रहेगा. आइदर विद द आइदर टू कंप्लाई विद सेक्शन सबसेक्शन 2 और to opt or to go by 50% option. But ये 50% का benefit shall not apply to the tax paid on the supplies made by one registered person to another registered person having same permanent account number. यानी एक ही बैंक का दो अलग अलग जगह पे ब्रांचेस है, जो अलग अलग जगह पे रजिस्टर्ड ऑफिस है, तो वहां पे ये क्रेडिट नहीं मिलने वाला. तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे पूरा 100% मिलेगा क्योंकि सेम है उनका परमानेंट अकाउंट नंबर. उन लोगों का जो भी इनपुट एक दूसरे को जो भी सर्विस या गुड्स प्रोवाइड करेंगे उस पर पूरा का पूरा क्रेडिट मिल जाएगा. तो 17.1, 17.2, 17.3 एंड 17.4 आर स्मॉल टॉपिक्स. 17.1 में बोला था इफ इट इज पार्टली यूज फॉर बिजनेस पर्पज एंड पार्टली फॉर एनी अदर पर्पज, सो क्रेडिट इज रिस्ट्रिक्टेड टू दैट अमाउंट विच इज यूज फॉर द बिजनेस पर्पज. नेक्स्ट वन 17.2, if it is partly used for taxable supply including zero rated supply, then ITC is allowed. But if your outward supply is exempt supply, then ITC is blocked. 17.3, certain services, say for example, if transactions are such transaction on which reverse charge is applicable, transaction in security, sale of land,
sale of building which is covered in the schedule 2, then ITC is blocked. 17.4 is for banking and NBFC. Here two options are given, either to comply with subsection 2 or you can go by 50% option. 50% credit you can take every month and 50% shall be lapsed, but the same will not be applicable with the same permanent account number. 2% if they are made two registered person and they are having same permanent account number, then 50% limit is not applicable to them. Whole 100% credit is available. Now next one is section 17 subsection 5, motor vehicles as substituted by CGST Amendment Act 2018. So this is very important point. Section motor vehicle as substituted by CGST Amendment Act 2018. Here motor vehicle for transportation of person having approved seating capacity of not more than 13%, including the driver, except when they are used for making the following taxable supply, namely further supply of such motor vehicles or transportation of passengers or imparting training or driving such motor vehicles. So इसका मतलब क्या है कि अगर कोई मोटर व्हीकल सप्लाई करता है या मोटर व्हीकल परचेज करता है तो मोटर व्हीकल के परचेज पे आईटीसी ब्लॉक है, बट अगर वही मोटर व्हीकल फर्दर सप्लाई ऑफ मोटर व्हीकल के लिए है तो आईटीसी अलाउड है. फर्दर सप्लाई मीन्स अगर वो मोटर व्हीकल का डीलर ही हुआ तो उसका तो मोटर व्हीकल परचेज करके मोटर व्हीकल बेचना उसका बिजनेस हो गया, तो देन आईटीसी इज अलाउड. If transportation of passenger, if motor vehicle is used for transportation of passenger from one place to another place, then ITC is allowed. And these are the exceptions. Imparting training on driving school, driving such motor vehicle. If you are imparting training on driving such motor vehicle, then also ITC is allowed. यानी किसी ने motor vehicle purchase किया है, but what is the purpose of purchasing motor vehicle? Purpose is to provide driving skill to individual, imparting training to individual related to driving. So then ITC is allowed. So when not allowed and when allowed, when any car purchase which is having capacity, seating capacity not more than 13, then ITC is blocked. समझते हैं उसको और डिटेल में, जैसे यहाँ पे दिखा है ITC on motor vehicle for transportation of person with seating capacity less than or equal to 13%, including the driver, used for any purpose other than ones mentioned in A, B or C, ITC not allowed. यानी अगर उसका सीटिंग कैपेसिटी 13 से ज्यादा है और A, B और C कहीं पे भी वो फॉल नहीं होता तो ITC ब्लॉक है. If ITC on motor vehicle for transportation of person with seating capacity greater than 13%, including driver, used for any other purpose is allowed. हाँ, बट अगर उसका कैपेसिटी 13 से ज्यादा है तो अलाउड है. जैसे मान लो कि 15% का कैपेसिटी है या 16% का कैपेसिटी है, देन ITC इज अलाउड. ITC on any motor vehicle, for example, motor vehicle used for transportation of goods, dumper, tripper, for any other purpose is allowed. It means the motor vehicle are purchased for transportation of goods is allowed, but if it is not for goods, it is not form part of the goods, then it is ITC is block. यानी अगर आप ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करते हो तो ITC आपका ब्लॉक नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ITC shall be allowed to company on purchase of trucks for transportation of goods. अगर कोई कंपनी ने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रक परचेज किया तो वो ट्रक पे जितना भी टैक्स पे किया है वो उसको क्रेडिट उसको मिल जाएगा जब भी वो आउटवर्ड सप्लाई करेगा तब. जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ. वेयर आईटीसी इज नॉट अलाउड. तो पहला एग्जांपल है एक्स परचेज वन मोटर कार. उसने एक परचेज किया, जैसे एक्स इज द ओनर ऑफ ए फैक्ट्री हैविंग कैपेसिटी ऑफ 5 पैसेंजर टू बी यूज्ड बाय हिम फॉर गोइंग टू फैक्ट्री. वो फैक्ट्री में जाने के लिए एक कार परचेज कर रहा है और जिसका कैपेसिटी 5 है और उसका पर्पस है फैक्ट्री में जाना, तो ये बिजनेस पर्पस तो हुआ. फिर भी
जैसे ये कार का वैल्यू था 5 लाख और उस पर जीएसटी आया 1 लाख, तो क्या ये 1 लाख का जीएसटी का क्रेडिट उसको मिलेगा? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज इसका सीटिंग कैपेसिटी कितना था? 5। हमने क्या रिस्ट्रिक्शन रखा है कि अगर सीटिंग कैपेसिटी 13 या उससे कम है तो वो ऐसा कोई भी मोटर व्हीकल परचेस किया है, फिर वो बिजनेस में यूज करने वाले हो या नहीं करने वाले हो, दैट डजंट मैटर, उस पर आईटीसी नहीं मिलेगा। बट वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए नहीं होना चाहिए। अगर वही व्हीकल अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए हुआ तो मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए हुआ तो मिल जाएगा। बट अगर कोई देखो कार परचेस करता है तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए नहीं होता नॉर्मली। सेकेंड एग्जाम्पल इज a registered person purchases a motor vehicle seating capacity 10 passenger for commutation of employee from their residence to factory and back। यानी यहाँ पे क्या है कि एक मोटर व्हीकल परचेस किया है जिसका सीटिंग कैपेसिटी 10 पैसेंजर है। उसका पर्पस क्या है? टू कम्यूटेशन ऑफ एम्प्लॉई फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू फैक्ट्री एंड फैक्ट्री टू रेसिडेंस। तो ये भी बिजनेस पर्पस तो हुआ, और उस पर भी आईटीसी तो आपको नहीं मिलने वाला, बिकॉज सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द मोटर व्हीकल इज 10 only। Car purchased by marketing company for official use of its employee, here also credit is not available because car is purchased and sitting capacity of the car is in normal cases is less than 13। अगर 13 से ज्यादा हुआ तो वो कार नहीं रहता, फिर वो मिनी ट्रक जैसा बन जाता है, टेम्पो जैसा बन जाता है। वेयर आईटीसी इज अलाउड, अब देखो नीचे सेक्शन 17 सबसेक्शन 15 क्लोज ए में आईटीसी का अलाउड है, कब कब अलाउड है। से फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स परचेज मोटर कार फॉर रनिंग ए टैक्सी, टैक्सी रन करने के लिए उसने एक मोटर कार परचेज किया, तो देखो अब इसका टैक्सी का सीटिंग कैपेसिटी 13 से कम ही होगा, फिर भी उसको क्रेडिट मिल जाएगा, क्योंकि टैक्सी रनिंग वो किसके लिए यूज होता है? टू ट्रांसपोर्ट ए पैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। So that is why now ITC is allowed. So here purpose is also important along with the seating capacity. If you are using for transportation of goods, for transportation of passenger or for imparting training, then ITC is allowed, whether irrespective of the seating capacity. Next one is a car purchased by company engaged in renting out of car for transportation of passenger। अब कार कंपनी ने परचेस किया, उसका बिजनेस ही है कि पैसेंजर्स को ये कार रेंट पे देने का, और वो पैसेंजर उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करेगा, तो आईटीसी अलाउड है। अ कार डीलर हैज परचेज कार फॉर रीसेल, अगर कार डीलर ने कार परचेज किया टू रीसेल इट, देन ऑल्सो आईटीसी इज अलाउड। तो क्योंकि सिंपल है कि कार को आप बेचना चाहते हो इसके लिए, और आपका ये बिजनेस है। अ ड्राइविंग स्कूल हैज परचेज कार फॉर यूज इन इम्पार्टिंग ड्राइविंग स्किल, यानी अगर कोई ड्राइविंग स्कूल कार परचेस करता है, पर्पज इज टू प्रोवाइड और टू इम्पार्ट ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग इम्पार्ट करना है। सो यहाँ पे इम्पार्टिंग ड्राइविंग स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, सो दैट इज वाई आईटीसी इज अलाउड। नेक्स्ट वन इज ट्रक परचेज बाय कंपनी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इट्स फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगर किसी ने ट्रक परचेज किया है तो हियर देखो पर्पज इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश गुड्स एंड ये ट्रक है, तो ये दोनों चीज को देखते हुए ये क्रेडिट मिल जाता है। मान लो कि ट्रक का वैल्यू है 10 लाख, उस पर जीएसटी पे किया है 2 लाख, तो ये 2 लाख का आपको क्रेडिट मिल जाएगा, आप उसको वापस ले सकते हो। नेक्स्ट वन इज बस परचेज बाय ए कंपनी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय फॉर रेसिडेंस टू ऑफिस एंड बैक। मैं आपको सीधा एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो कि रिलायंस ने एक बस कार परचेस किया जिसका सीटिंग कैपेसिटी था 10, उसका पर्पस क्या था? अपने एम्प्लॉई को घर से ले जाने का और वापस रखने का, तो आईटीसी ब्लॉक है। अब अगर उसने बस परचेस किया, रिलायंस हैज परचेज ए बस टू टेक देयर एम्प्लॉई फ्रॉम द रेसिडेंस एंड टू कीप देम बैक टू देयर होम, then in this case it is allowed, because in normal case capacity of bus is having sitting capacity more than 13 passengers, so that is why here ITC is not blocked. So these are the examples. If you understand thoroughly, you can understand the concept and you will get the knowledge when ITC is blocked and when ITC is not available. So here
sitting capacity is 13 or less, then ITC is blocked. But in this case also, ITC is allowed when it is used for, if it is a dealer, if it is used for transportation of goods, if it is used for transportation of passenger, then ITC is allowed. But आपको थोड़ा देखने का उसका बिजनेस क्या है, उसका सिटिंग कैपेसिटी क्या है, और उससे डिसाइड होगा कि आईटीसी ब्लॉक होगा कि नहीं. देन नेक्स्ट पॉइंट. Thanks for watching my video. Do like and subscribe my YouTube channel.